Good morning, students. Today, this period is subject computer, and today we study about the chapter number 8, formatting in Word, part second. Last week, we studied about the chapter number 7, formatting in Word, part first. Last time, discussed about the according to formatting in MS Word, different type fonts, how to use font size, how to use the font style, and how to change the case. And today study and discuss about the formatting in MS Word part second. According to formatting, different types of alignment. Formatting according to the different types of alignment through the paragraphs. Last time discussed about the page formatting, character formatting, character formatting, then different types of font size, font style, and present time discuss paragraph formatting. Paragraph formatting of the document separated entire system apply to formatting settings on the paragraphs like the spacing of lines, tab stops, text alignment, orientations, and different types. First of all, text alignment. Text alignment to set our paragraph, our sentence according to the margins. What is margins? Margins are the limit of the text formatting. There are different types of margins. Number one, top, second, right, third, left, and fourth, bottom. There are four types of margins. Top, it means top. Top margin set the blank space for the top, and bottom margin in the below the last paragraphs blank space, and left margin before type any text, then space is called left margin, and after complete the sentence then blank space is called right margin. According to margins type, different types of text, sentences, and paragraphs. Paragraphs also type in systematic way according to the alignment, text alignment. Similar to margin set, there are different types of margin text alignment. Number one, left align,
right alignment, third center alignment, center alignment, and fourth justify. Justify alignment. All these types of alignment and margins and tab settings mentioned on the format menu or formatting toolbar, like the font size, font style, and font face. Left alignment, manually type any text, start from the left side. It is the default text alignment. Left alignment is the default alignment. Is the default alignment because it gets starting point in every times, so it is called the default alignment, in which text is designed along with the left margin. क्योंकि लेफ्ट अलाइनमेंट टेक्स्ट जब स्टार्ट करते हैं तो ऑलरेडी हम जो लेफ्ट मार्जिन होता है, लेफ्ट मार्जिन से नोटबुक में आपका ये आपका नोटबुक का पेज है, इसमें आप देखते हैं ये प्रोसेस होती है। ये आपका लेफ्ट अलाइनमेंट और टॉप अलाइनमेंट, टॉप मार्जिन और लेफ्ट मार्जिन ऑलरेडी सेट होता है। कभी कभी हम इस साइड से भी इसको लाइन ड्रॉ कर देते हैं और यहाँ भी इसमें कर देते हैं। सिर्फ पर वर्क को हम इस लाइन स्पेस पर टाइप करते हैं। लेफ्ट मार्जिन के अकॉर्डिंग हम लेफ्ट अलाइनमेंट को, और डिफॉल्ट में क्या होता है आपका लेफ्ट अलाइनमेंट यूज होता है। नेक्स्ट आपका था राइट अलाइनमेंट। राइट अलाइनमेंट अकॉर्डिंग टू द फॉर्मेटिंग टेक्स्ट अलाइनमेंट, it is used for the in that alignment text align the columns the right margin. Here are second right margin according to the right margin के अकॉर्डिंग। सपोज आपका ये राइट मार्जिन नहीं है तो आपका टेक्स्ट है वो अकॉर्डिंग राइट मार्जिन से स्टार्ट होगा। टेक्स्ट अलाइनमेंट लाइक ए लैंग्वेज सच एज उर्दू, राइट written by the right alignment text। इसको राइट साइड से स्टार्ट करते लिखना, उसका जो डिफॉल्ट टेक्स्ट अलाइनमेंट होता है वहाँ पर राइट टेक्स्ट अलाइनमेंट होता है। पैराग्राफ्स सेट फ्रॉम द अकॉर्डिंग टू द टेक्स्ट अलाइनमेंट एंड अकॉर्डिंग टू मार्जिन सेट। नेक्स्ट सेंटर अलाइनमेंट। सेंटर अलाइनमेंट set your text or paragraphs according to left and right margin. Both sides are equal space. Suppose this setting at the starting point blank space and right side blank space are equal and middle tag the heading, so it is called the center alignment. Center alignment makes the text respect the left and right margin, इन दोनों मार्जिन के अकॉर्डिंग इसको सेट करता है। एंड नेक्स्ट आता है जस्टिफाई। सपोज you are typing any text, any document, then start justify button, because this alignment set your text according to the
right and left margins. सिंपल डिफॉल्ट अलाइनमेंट के अकॉर्डिंग जब हम टेक्स्ट को टाइप करते हैं तो आपने देखा होगा कि कोई भी लाइन करते हैं उस लाइन आपकी यहाँ पर स्टॉप हो जाती है, क्योंकि नेक्स्ट वर्ड होता है उसकी स्ट्रेंथ ज़्यादा होती है और वो शिफ्ट हो जाता है सेकेंड लाइन में, इसलिए यहाँ स्पेस रह जाता है। लेकिन बिफोर टाइपिंग जस्टिफाई अलाइनमेंट बटन को अगर हम क्लिक कर देंगे तो आपका ऑलरेडी आप टाइपिंग करेंगे और टाइपिंग के साथ साथ आपका टेक्स्ट है अकॉर्डिंग टू लेफ्ट हैंड मार्जिन्स के सेट होता जाएगा। सपोज ये यहाँ पर आपका वर्ड 2 कैरेक्टर स्पेस होती है और आप यहाँ पर 5 कैरेक्टर्स का आपने टाइप कर दिया टेक्स्ट को भी कोई वर्ड, इट मीन्स क्या होगा कि इस लाइन को अनकम्प्रेस कर देगा, इस लाइन को ऑटोमेटिकली जस्टिफाई होने पर अनकम्प्रेस हो जाएगी, इट मीन्स इसको थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा ऑटोमेटिकली और ये स्पेस ज़्यादा होगा और वर्ड को एडजस्ट करना है, एक तो कट करता है तो उसको कंप्रेस भी कर देगा, ऑटोमेटिकली कंप्रेस अकॉर्डिंग टू योर टाइपिंग वर्ड्स सेट द टेक्स्ट विद इन द टाइपिंग ऑफ लेफ्ट हैंड मार्जिन सेटिंग। There are 4 types of text alignment that use the set the text or paragraph in your document. There are 4 margins: top, right, left and bottom. There are different buttons on the formatting bar such as called left alignment, right alignment, center alignment, justify alignment and top alignment. Sorry, top margins. इस टाइप का आपका एक बटन सेटिंग होती है जहां पर आपका 4 टाइप्स के बॉक्स होते हैं, ठीक है। ये आपके 4 टाइप के बॉक्सेस होते हैं जिसमें लाइनिंग सुनी होती है, इधर ये क्या कहलाता है, लेफ्ट अलाइनमेंट, लेफ्ट अलाइनमेंट, ठीक है। उसके बाद सेकंड बटन जो आपका होता है वो आपका होता है सेंटर का। सेंटर में क्या होता है, इस तरह से दिस कॉल्ड सेंटर अलाइनमेंट, सेंटर अलाइनमेंट एंड अगेन राइट this is called the right alignment, and the last justify alignment, justify alignment। यहाँ पर आपने क्या देखा, ये लेफ्ट अलाइनमेंट में जो लेफ्ट साइड मार्जिन है वो सारा सीक्वेंस, यदि हम स्केल को लगा दें तो ये क्या होगा, बिल्कुल सारी लाइनें एक साथ टच कर रही होंगी, कोई छोटी बड़ी नहीं होगी लेफ्ट साइड से, इसलिए लेफ्ट अलाइनमेंट होता है। इसमें क्या होता है कि आपका राइट अलाइनमेंट में क्या होता है, यहाँ से राइट साइड में लगा देंगे तो इधर राइट से बराबर है, लेफ्ट में छोटी बड़ी हो सकती लाइनें लेकिन यहाँ पर ये साइड से बराबर है। और इसमें क्या होता है, इसमें आपने क्या देखा, सेंटर अलाइनमेंट में, ये गलत एक मिनट, ये राइट अलाइनमेंट है, राइट अलाइनमेंट देखिए
राइट अलाइनमेंट में ऑल साइड्स आर क्या है, इधर राइट साइड में सभी सिमिलर है। और ये सेंट्रल अलाइनमेंट है, सेंट्रल अलाइनमेंट में क्या हो रहा है, दोनों साइड्स की बराबर है। जो आपका स्पेस है यहाँ पर आपका क्या देखा जाता है, स्पेस देखा जाता है, इधर का स्पेस और इस साइड का स्पेस दोनों क्या होना चाहिए, सेम होने चाहिए। जस्टिफाई में क्या होता है, जस्टिफाई में सारी लाइंस बराबर होंगी, इधर से भी बराबर होंगी और इधर से भी, यानी जस्टिफाई में आपका जो मार्जिन सेट है वो राइट साइड भी, लेफ्ट साइड भी होगा और राइट साइड भी रहेगा। ठीक है, यहाँ पर आपका लाइन छोटी बड़ी कैसी भी हो, दोनों साइड का स्पेस बराबर रहेगा। एक छोटी लाइन है तो जितना अगर 1 इंच का इधर स्पेस 1 इंच का इधर होगा, मिडिल होगी, सेंटर में होगा। हम लोगों ने आज टेक्स्ट अलाइनमेंट और आपका टॉप राइट लेफ्ट के मार्जिन्स के बारे में पढ़ा। इसके साथ इसमें और भी कई चीज़ें होती हैं, क्योंकि टेक्स्ट अलाइनमेंट हमें इसी के अकॉर्डिंग उसको सेट करते हैं। आज हम लोगों ने टेक्स्ट अलाइनमेंट के बारे में पढ़ा। हाउ टू स्टार्ट टेक्स्ट अलाइनमेंट, गो टू द फॉर्मेट मेनू एंड क्लिक ऑन द फॉन्ट and click on any types of font size, font style and the text alignment mention on it, and other option is used for the formatting paragraphs according to the format toolbar. Then mention different types of text alignment and margin sets. Margin sets according to the रूलर बार। ये आपका टॉपिक आज इस मार्क होता है। नेक्स्ट डे आगे आपका टैब्स, लाइन स्पेसिंग, इसको हम कैसे करते हैं। थैंक्स, हैव ए गुड डे।